Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and good. As today onwards, we are going to start our online classes. First, 7th class science. Okay. So, all of you know we completed our portion, but again, I'm repeating the lesson, so listen carefully. So, today we are going to start the lesson that is reflection of light. Okay, what is ninth lesson? Repeating again I am, so listen carefully. Reflection of light. Yes, what do you mean by reflection? So, what do you mean by reflection? Reflection of light. Reflection is nothing but reflecting. Suppose एक लाइट है, लाइट से अपने को जो रोशनी आ रही, जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो अपीयर अपने को जो दिखाई दे रहा, सो दैट इज़ कॉल्ड हैज़ एन रिफ्लेक्शन. सो उसकी रिफ्लेक्शन लाइट की जो रोशनी अपने को दिखाई दे रही ना दूसरे ऑब्जेक्ट पे, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं. ओके. In class 6, you saw how shadows are formed. You observe that the shape of the shadow changes according to the position of source of light and the position of object. You drew shadows of some objects and you noticed that the rays of light travels in a straight line by the observation of shapes of the shadow. So already you have learned about shadows in 6th class. सो व्हाट डू यू मीन बाय शैडोज़? शैडोज़ मतलब क्या? शैडोज़ मतलब अपनी परछाई. सो शैडोज़ कैसे फॉर्म होते? ओके. सो शैडोज़ को शेप रहते. सो दैट द शेप ऑफ द शैडो चेंजेस अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट. जैसे अपने शैडो का पोजीशन कैसा चेंज हो जाता लाइट के थ्रू. सो व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ लाइट, वेयर द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. So because of the source of the light, the shadow is according to that position, the shadow is changing. For which position? Light position. Okay. You drew shadows of some objects and you notice that the rays of light travels in a straight line by the observation of the shapes and shadows. जैसे अपन शैडोज़ को ऑब्जर्व करते, शैडोज़ को ऑब्जर्व करने के बाद अपने को क्या मालूम होता है? लाइट क्या है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है वहाँ पे लाइट. ओके. You came to know that when light falls on an object, if that it will be reflected by the surface of that object, and if that reflected light reaches our eyes, we can see that objects. So how we are knowing? When we are knowing how the shadow is formed, so when the light rays falls on the object, it will reflected by the surface. जैसे एक लाइट रेस है, जैसे लाइट के रेस रहते हैं ना, लाइट की जो रोशनी रहती है ना, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फॉल हो रही तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? जब रिफ्लेक्ट होता, रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. जो अपन लाइट से जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को अपन लाइट लगा रहे, ओके, रोशनी आ रही, सो वो जब रिफ्लेक्ट हो रहा, अनदर ऑब्जेक्ट क्या है, उसके ऊपर रोशनी गिर रही, मतलब वहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा. जब अपने आंख वहाँ पे गिरने पर अपने को महसूस होता कि दैट लाइट इज रिफ्लेक्टेड, द ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड बाय लाइट. Okay. In this class, we try to learn more about reflection of light. So, in this lesson, we are going to learn about the reflection of light. Okay. Let us do this. Point a torch towards the mirror so that it falls on the mirror which holds up as shown in the figure to see your image in the mirror. So, here what we are doing, point a torch. Torch को क्या है? मिरर के सामने अपन लेके जाके टॉर्च रख रहे. सो व्हाट हैपन? द लाइट विल फॉल्स ऑन द मिरर विच होल्ड यू अप बाय शोन इन द फिगर. जैसे अपन टॉर्च को जैसे पकड़ के मिरर में दिखाई देते हो, क्या है? अपने को लाइट की रोशनी ऑटोमेटिकली वहाँ पे मिरर पे दिखाई दे रही. द टर्न द टॉर्च टूवर्ड्स योर फेस इन फिगर 1 एज यू सी योर इमेज इन द मिरर. सो व्हाट हैपन? जैसे you will find that when light is focused on your face, can see your image clearly in the mirror. You also notice that when light is focused on the mirror, you find a dim image of your face in the mirror. Why does it happen so what happened? So जैसे अपन फर्स्ट में क्या करें, फर्स्ट पॉइंट में जो टॉर्च है वो अपन मिरर को डायरेक्ट टॉर्च रिफ्लेक्ट करे, तो क्या वहाँ पे क्लियरली अपने को टॉर्च दिखाई दिया. सो now what we have to do, that only you have to turn the torch with towards your face. जो है वो टॉर्च को आपके फेस के साइड टर्न करना है.
जैसे अपने को कुछ दिखाई देता मिरर में, सो वी कांट सी प्रॉपरली। जैसे अपने को लाइट ज़्यादा, अपने फेस पे लाइट ज़्यादा रहे तो क्या है, मिरर में अपना फेस ब्लर दिखाई देता, वी कांट सी क्लैरिटी, वी कैन नॉट सी, सॉरी, अपन अपने इमेज को क्लैरिटी से देख नहीं सकते। ओके, इफ़ देर इज़ एन मोर लाइट टू आवर फेस, रिफ्लेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है अपना फेस का, जहाँ ज़्यादा रोशनी है तभी क्लैरिटी से अपने को नहीं दिखाई देता। नेक्स्ट थिंग, we already know that to see any object, light should fall on it. In daytime, we are able to see all objects which are in our room, even though sunlight does not fall directly on those objects. How it is possible? So, even though already we know, we can see, जैसे अपन थोड़े ऑब्जेक्ट्स डे टाइम में लाइट अगर वहाँ पे लाइट रेस फॉल ना हो तभी वो ऑब्जेक्ट्स को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हो, नोटिस कर सकते डे टाइम में। ओके, हाउ इट इज़ पॉसिबल, जैसे कैसे अपन देख सकते हैं ओनली डे टाइम में लाइट सनलाइट नहीं रहने पर भी। द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम सरफेसेस लाइक वॉल, फ्लोर, सीलिंग एक्सेट्रा फाइनली falls on the object and gets reflected by it and reaches us. These enables us to see the objects. जैसे अपने को डे टाइम में कैसा दिखाई देता, जैसे ऑब्जेक्ट, जैसे अपने वॉल्स रहते, दीवार रहती, विंडोज़ रहते, रूफ रहता, सीलिंग्स है, उसके थ्रू डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, मगर मल्टीपल हल्की हल्की से रोशनी आने पर अपने को ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई देते। Imagine that your friend sat in the middle of the room. Estimate how many times reflection of sunlight should take place to finally find on your friend. Identify the places from where light reflects. So जैसे आपके फ्रेंड है, आप जहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही, घर में तो डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, सो एक एक प्लेस से वहाँ पे चेंज हो जाते हैं। जैसे आप एक फ्रेंड को बिठाइए, आप बैठिए, ऑब्जर्व करिए वहाँ पे लाइट रेस फॉल होने पर कितने इमेजेस होते हैं इसके। फर्स्ट एक प्लेस पे होती है और थोड़ा टाइम होने के बाद वो प्लेस चेंज होते रहती, सो लाइट रिफ्लेक्शंस ऐसे होते रहते हैं। एंड रिमेनिंग टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेसन, in the next class, and you have to read the question answers of 7th lesson, reflection of light. Thank you.